کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں، ٹریفک قوانین پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ملتان پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ گزشتہ 3 روز میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 1400 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں، ملتان سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ گزشتہ تین دن کے اندر دور انخلافی پر 1400 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ بغیر ہیلمٹ، بغیر لائسنس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ٹریفک قوانین پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا یہ موقف ہے۔ اپڈیٹ کریں، ملتان سے ٹریفک قوانین پر کوئی رعایت نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احمد خان نے۔ احمد خان بتائے گا۔ آج بالکل ملتان میں پنجاب حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ جو قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ان پر جو ہے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں۔ ملتان پولیس نے اب تک کتنے مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن طاہر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انفورسمنٹ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ مراحل ہوتے ہیں، پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ فائنس کیے جاتے ہیں، اور اینڈ پہ جو ہے اگر فائن پہ بھی جو ہے وہ لوگ نہ روکیں تو جو ریپیٹر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ ابھی تک پچھلے لاسٹ 3 ڈیز میں جو ہے وہ یہاں ملتان میں تقریباً مور دین 1400 جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، لیکن اس میں ہماری خواہش اور لوگوں سے ابھی ریکویسٹ ہے کہ وہ انفورسمنٹ جو بھی گورنمنٹ کے لاز ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، ہیلمٹ پہنیں، لائسنس رکھیں اور دیگر ٹریفک قوانین کی وائلیشن نہ کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ زندگیوں کو سیف بنایا جائے۔ تو اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو یہاں پنجاب میں پورے سال میں تقریباً 108 کے قریب مرڈر میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ میں اس سے کمپیریٹو 240 کے قریب لوگ جو ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ ہاں جی بالکل، ان ایف آئی آر کے اگر متبادل بات کی جائے جو حادثات جو ہیں وہ بہت ہو رہے تھے، جس میں قیمتی جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی تھی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے انیشیٹو جب لیا گیا تو ملتان میں اب تک جو ہے 1400 سے زائد جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں جنہوں نے وائلیشن۔ جی شکریہ عمر خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن کی نومبر کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ مجموعی طور پر 916 مقدمات درج کیے گئے۔ تیز رفتاری، اوور لوڈنگ اور دیگر ٹریفک خلاف ورزیوں پر 117 مقدمات درج ہوئے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی گیس سلنڈر رکھنے پر 216 اور ناجائز اسلحہ، شراب نوشی اور چرس کے 45 مقدمات درج کیے گئے۔ کارروائیوں کے نتیجے میں 3 اسلحہ، 560 لیٹر شراب، چرس، 6 چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور 1 کار برآمد ہوئی، جبکہ 100 کلو مضر صحت گوشت اور آتش بازی کا سامان بھی ضبط کیا گیا۔ پٹرولنگ پولیس نے اس ماہ کے دوران 34 اشتہاری اور 20 عدالتی مفرور ملزمان کو بھی گرفتار کیا۔ عوامی خدمات کے تحت شہرات پر 4022 شہریوں کو امداد فراہم کی گئی اور 46 افراد کو فرسٹ ایڈ دی گئی۔ کریشنگ سیزن کے دوران رحیم یار خان کی قومی شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز ہو جائیں کارروائیوں کے لیے تیار۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانا اسماعیل ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں متحرک ہیں۔ تفصیلات جانیں گے عامر بھٹی سے۔ بالکل رحیم یار خان میں شوگر ملز نے گنے کی کرشنگ کا سیزن شروع کر دیا اور ایسے میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے موٹر وے پولیس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانا محمد اسماعیل، ان سے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گنے کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سابقہ روایات کی طرح نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس رحیم یار خان سیکٹر نے اس کے اوپر اچھی خاصی ورکنگ کر لی ہے، اور انسپیکٹر جنرل، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور ڈی آئی جی صاحب کی ہدایات کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے تمام فارمرز کے ساتھ، تمام مل آنرز کے ساتھ میٹنگ کر لی ہیں اور ان کو بریف کر دیا ہے کہ گنے کی ترسیل سابقہ روایات کی طرح کس طرح ہم نے فارم سے لے کر مل تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فوگ سیزن بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اس سلسلے میں ہم نے پھر فوگ لائٹس، اس کے علاوہ یوز آف ریفلیکٹرز، اس کے بارے میں سب کو بریف کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور ڈی پی او رحیم یار خان، ان کے ساتھ بھی میری گئے میٹنگ ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمن میں شوگر کین کے حوالے سے خاص طور پر میں میٹنگ ان کے ساتھ کر چکا ہوں، اور میں نے اپنی پوری فیلڈ فارمیشن کے ساتھ اور تمام ڈی ایس پی کے ساتھ میٹنگ کر چکا ہوں، ان کو سب کچھ بریف کر دیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہم سابقہ ایئرز کی طرح انتہائی کامیاب اور منظم طریقے سے انشاءاللہ اس سیزن کو پاس آؤٹ کریں گے۔ موٹر وے پولیس کی جی شکریہ عامر بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
अहमदपुर शर्किया में हेलमेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। 2000 रुपए जुर्माने के खौफ ने दुकानदारों को लूटमार का मौका दे दिया है। जो हेलमेट पहले 1000 रुपए का था वो 4 गुना ज्यादा में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात जानेंगे खादिम हुसैन सोमरो से। जी, ट्रैफिक के नए कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो हेलमेट की जो है वो मांग में इजाफा हो गया। शहरी जो है इस वक्त एक दुकान पर मौजूद है हेलमेट की खरीदारी के लिए। उनसे जानेंगे कि क्या मामलात हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे, हेलमेट खरीद रहे हैं आप? कल तक जो हेलमेट 1500 का मिल रहा था, 1000 में मिल रहा था, जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है इन्होंने हेलमेट 4000 5000 का कर दिया, जो 1500 का मिल रहा था। अब बताएं कि हम क्या करें। हुकूमत को भी चाहिए कि भी इनसे भी थोड़ा सा मामलात करें कि रेट सही करें ताकि हम यहाँ पे हेलमेट अपना खरीद सके आसानी से। हमें मुश्किल हो गई है। जी, ये तो एक तरफ हो गया खरीदार का मौकफ, और हमें दुकानदार से जानेंगे क्यों भाई आपने अचानक हेलमेट के जो है वो रेट बढ़ा दिए हैं, इसकी क्या वजह है? जो हमारे पास पुराना माल था ना, तकरीबन 2-3 दिन पहले जो हमारे पास पुराना माल था ना, मतलब कि 1200 का भी सेल कर रहे थे, 900 का भी सेल कर रहे थे। अभी वही हेलमेट जो 1200 वाला है ना, कल हमने जब कॉल किया ना मुल्तान में 3500 का होलसेल पे में मिल रहा था। तो हम कंपनी से नहीं मंगाते, हम मंगाते होलसेल से, मुल्तान में अभी 1200 वाला हेलमेट 3500 का मिल रहा है। कल हम अपनी गाड़ी लेके गए, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ लेके आए। हेलमेट चंद पीस मिले हमें, वो भी 3000 3500 4000 इस रेट में। जी, जैसा कि आपने सुना। जी शुक्रिया खादिम हुसैन अपडेट करने के लिए। मोटरसाइकिल रिक्शे बंद करने हैं तो बैटरी से चलने वाले रिक्शे बैंक से लेते हैं। मुल्तान में पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन के अहदेदारान ट्रैफिक मसाइल और जुर्मानों के खिलाफ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इस टाइम पिसे हुए हैं जुर्मानों की मद में आके। हमारी तरफ से आप हवाई जहाज चला दें शहर के अंदर, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये जो माशी कत्ल रशकों का हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये हमारी अपील है। हम अपील ही कर सकते हैं, तो कम से कम आप इसका कोई लाहे अमल बना लें। अब कुछ लोग कहते हैं कि अनलीगल है। भाई लीगल किसने करना है? जिले हुकूमत ने करना है। भाई इसका जो चेचिस नंबर है वो बॉडी पे पंच कर दे, पंच करने के बाद इसको रूट इशू कर दें, रेवेन्यूज भी इकट्ठा होगा और गरीब आदमी का चूल्हा भी जलेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई मजबूरी है तो एक हम मशवरा ही दे सकते हैं, इनको एक बैटरी रस्का जो है बैंक के जरिए किस्तों पे, आसान किस्त पे 4-5 हजार रुपए महीने की किस्त पे दे दें और ये रस्के जमा करके उसको एडवांस में रख लें। वैसे तो मुल्क के अंदर बिजली का वैसे ही बुरान है, जब बिजली नहीं है तो बैटरी कहां से चार्ज होगी। आपको बताएं, इंतजामिया रिक्शे और रेडी वालों को बाजार से बाहर रखे। डीजे खान के अंदेवाला चौक पर रिक्शों के बेहंगम तरतीब से शहरी परेशान। कहते हैं रिक्शे और रेडियों से कई घंटों तक बाजार बंद रहता है। मजीद तफसीलात बताएंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदेवाला चौक के ऊपर और यहाँ पे बेहंगम तरतीब से चलने वाले रिक्शे और बाजार के अंदर दाखिल होने वाली रेडी बांध से जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बेहंगम तरतीब से रिक्शे चलते हैं वो मेन बाजार के अंदर दाखिल हो जाते हैं और साथ साथ इसके जो रेडी बांध है वो सड़क के बीचों बीच जो है अपनी रेडियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे यहाँ पर ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है बाजार जाने वाली तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए शहरी मौजूद से जानते हैं। जी जनाब, बताएंगे क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्यों इस तरह के मसाइल? जी ये रेडी वालों की वजह से सारा कुछ ये सब चीज़ पेश आ रही है। रेडी वाले तंग करते हैं, बाजार में दाखिल होते हैं, जिस वजह से रिक्शे वाले और रेडी वाले सारे इन्होंने सारी बाजार में बेतरतीबी पैदा की हुई है, जिस वजह से जो है ना हमें बहुत मुश्किलात और ख़ास तौर पे लेडीज़ को ख़ास तौर पे जो है ना परेशानी पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो रही है। तो इंतज़ामिया आती है, जब आती है तो बस वो सब चीज़ हट जाती है, जब चली जाती है फिर ये सब चीज़ दोबारा एक्टिव हो जाती है। तो मेहरबानी करके हमें से गुजारिश है ये सब चीज़ मेहरबानी करके हम शहरियों के ऊपर मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया हरकत में आती है जब तो इनको जो है बाजार से दाखिल होने नहीं दिया जाता, इनको हटा दिया जाता है। जी शुक्रिया शान बुखारी अपडेट करने के लिए। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान में घरेलू सार्फिन के साथ साथ तंदूर मालिकान भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तंदूर मालिकान कारोबार जारी रखने के लिए मजबूरन महंगी एलपीजी भरवाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन के साथ तंदूर मालकान भी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि
गैस की लोड शेडिंग की वजह से LPG गैस भरवानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी होती है और इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो हमारे साथ तंदूर मालिक मौजूद हैं। भाईजान बताएं क्या मुश्किल है? भाईजान बहुत लोड शेडिंग है गैस की, LPG महंगी है और तंदूर के खर्चे ज़्यादा हैं, लेबर काम करती है उनका खर्चा है, गैस तो दुकान का किराया, बिजली का बिल है, वासा का बिल है, आटा इतना महंगा है, अगर रद्दी भी लिफाफे भी इतने खर्चे हो जाते हैं, गैस इनके पैसे पूरे नहीं होते, हमें ऊपर से मजिस्ट्रेट आ जाता है, ये जुर्माना है जी आपके लिए, आपको हम दुकान सील कर देंगे। जी शुक्रिया फराज रमजान अपडेट करने के लिए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल का कार्डिक सेंटर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। आउटडोर फार्मेसी पर अद्वियात मुकम्मल नापैद हैं। अस्पताल में लड़ाई झगड़ों के वाकयात बढ़ गए। तफसीलात जानेंगे ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, कार्डिक सेंटर बहावलपुर में बजटरी इश्यूज जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और इन इश्यूज की वजह से ओपीडी में जो अद्वियात हैं अब वो नापिद होती जा रही हैं। एस्प्रिन की अगर हम बात करते चलें, जो कि एक ऑक्सीजन की मानद रखती है दिल के मरीजों के लिए, वो भी दस्तयाब नहीं है। लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। तो इस हवाले से आप देख भी सकते हैं कि जो यहाँ पर मरीज हैं दिल के, वो आके झगड़ रहे हैं कि हमें अद्वियात नहीं मिल रही हैं और जिनको 10 टैबलेट्स लिखी गई उनको सिर्फ 2 मिली और बाकी टैबलेट्स जो है उनको बाजार से लेने का कहा गया है। आप बताइएगा जी क्या सूरत हाल है? यहाँ पे दो दवाइयाँ मिली हैं मुझे 5 में से, तो बाकी कहते हैं बाजार से ले लें। तो 2 माह से दवाई भी नहीं मिल रही थी, घर जा रही थी पहले, अभी नहीं घर जा रही। तो मैंने कंप्लेन इधर किया, इन्होंने असर ही नहीं किया, कोई दवाई दे दें। मैंने उधर अभी भी कहा है, वो फिर भी नहीं मान रहे, कहते जब दवाई आएगी फिर देंगे। आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं और आप हासिलपुर से आए हैं। जब भी आते हैं ये बोलते हैं कि प्राइवेट दवाई ले लो, जिस वक्त जाते हैं पैसों से दवाई लेते हैं। ये अस्पताल सरकारी, हमें आने का 1000-2000 रुपया किराया भर कर आता है, 3000 रुपया किराया भरते हैं। जब भी आते हैं ये बोलते हैं बैठ से दवा कर दवा लेनी है तो फिर हम उधर से ले लें। ये हुकूमत से हमारा मुतालबा है, मेहरबानी करें ताकि गरीबों को सहूलत दिलाई जाए। दिल के मरीज हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। आप बताइए क्या सूरत हाल है? मेडिसिन मिल रही है, कब से नहीं मिल रही, क्या सूरत? तकरीबन 2 माह से जो है ना सही मेडिसिन नहीं मिल रही। 2 मिलती हैं या कभी 3 मिल जाती हैं, 9 में से 2 या 3 मिल जाती हैं, बाकी नहीं मिलती। कहते हैं बाजार से खरीद करें। विक्टोरिया जी शुक्रिया ताहिर जोधियाना अपडेट करने के लिए। वाली डंगाना के मुकाम पर दरियाई कटाव को रोकने के लिए तामीराती काम बंद कर दिया गया। फंड बंदिश के बायस तामीराती काम बंद किया गया। एक्सियन अनहार असद शफीक ने बताया, फंड के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को लिखा जा चुका है। करीबी आबादियों को किसी किस्म के खतरात लाहक नहीं है। तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियां वाली की नवाही इलाका ढकाना के मुकाम पर दरियाई कटाव को रोकने के लिए महकमा नहार की जानिब से तामीराती काम शुरू किया गया था और गुज़श्ता 1 हफ्ते से तामीराती काम बंद हो चुका है। इस हवाले से करीबी आबादियों को जो लोग हैं वो तशवीश में मुब्तला हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन महकमा नहार असद अब्बास साहब। आपसे सवाल से हम बात करेंगे। सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि जो हमारा इनिशियल टारगेट था कि हमने इस प्रॉब्लमेटिक साइट को कंट्रोल करना था, इसको डेंजर जोन से निकालना था, तो उसके लिए जो हमने रिवर्टमेंट शुरू की थी वो हमने कंप्लीट कर ली लास्ट वीक। तो अभी माशाल्लाह से 1 इंच भी दरिया जो है वो आगे नहीं बढ़ सका, वो इरोजन उसकी रुकी हुई है। लेकिन ये जो हमारा काम था, जो हमें प्रपोजल दी गई थी एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो वो अभी काम अधूरा है। उसकी कुछ रीजंस जो हैं वो इस तरह से है कि हमें बेसिकली हाईवे डिपार्टमेंट ने ये एज आ डिपॉजिट वर्क ये टास्क दिया था। तो जो इनिशियली हमें एक फंडिंग आई थी उसके हिसाब से हमने जो टारगेट बनाया था वो हमने अचीव किया, वो हमने काम कर लिया और साइट भी हमारी सिक्योर है। लेकिन चूंकि अभी काम जो है अभी हार्डली कोई 25-30% हुआ है जस्ट, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए डीसी साहब की तरफ से और कुछ मजीद फंडिंग भी चाहिए हाईवे की तरफ से। वो रिक्वेस्ट हमने टाइमली सबमिट कर दी थी, जो डीसी साहब ने भी आगे कन्वे की है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने एक्सियन साहब की बात सुनी कि फंड के इश्यूज की वजह से काम को आर्जी तौर पर किया गया है और अभी जी शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए।
अहम खबर है, आपको बताएं पंजाब भर के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा तालबात के लिए खुशखबरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात माह रमजान के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ईद उल फितर के बाद इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया है। मैट्रिक इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान है। आपको अपडेट करें, पंजाब भर के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा तालबात के लिए खुशखबरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात माह रमजान के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ईद उल फितर के बाद इम्तिहानात लेने का ऐलान किया है। मैट्रिक इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान है। बिहाड़ी में पुलिस की जानिब से एडवोकेट ज़ीशान ढूंढी के कत्ल के हवाले से हाई कोर्ट एसोसिएशन मुल्तान के सदर मोहम्मद अजहर मुगल, जनरल सेक्रेटरी सफदर सल्ताना और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज पूरे पंजाब में तहसील बार और डिस्ट्रिक्ट बार में पुलिस का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले स्ट्राइक की। उसके बाद कल 4 दिसंबर 2025 को हमने वकला नुमाइंदा इजलास जो है वो बुलाया हुआ है और अगला लाहे अमल हम इंशाअल्लाह ताला कल देंगे कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आगे क्या करने जा रही है। हमने अपनी पिछली कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि अगर ये हमारे मामलात हल नहीं होते और एक कातिल जो SHO माछीवाल है और उसकी बकिया टीम अगर उनके ऊपर बाकायदा FIR दर्ज करके उनको कटहरे में नहीं लिया जाता और उनको सलाखों के पीछे जब तक बंद नहीं किया जाता वकला चैन से नहीं बैठेंगे। इसी सिलसिला की एक कड़ी जो कि हमने इजलास बुलाया हुआ है, उसके बाद हम अपना अगला लाहे अमल देंगे और हम शुक्रगुजार हैं पंजाब बार के जिन्होंने मुसलसल स्ट्राइक की कॉल दी हुई है और उसके बाद हम कराची बार के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बिहाड़ी बार के साथ होने वाले वकूए का एक्शन लेते हुए कराची बार। मजीद बात करें, आपको बताएं एडवोकेट ज़ीशान ढूंढी की हलाकत पर बिहाड़ी बार के वकला सरापा एहतजाज। पुलिस के हाथ हमारे गिरोबानों तक पहुंच गए हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का फौरी SHO माछीवाल की गिरफ्तारी का मुतालबा है। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पुलिस का दाखिला बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलक आमिर चन्नर साहब। क्या कहेंगे, पुलिस का जहां जहां तशद्दुद होगा, जहां जहां मावराए अदालत या मावराए कानून बातें होंगी, आप लोग इसी तरीके से उनको एहसास दिलाते रहें? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, माजी में भी हमारा रोज़े रोशन की तरह यह किरदार रहा है बार्स का, वकला का, कि जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी हुई, जहाँ मावराए अदालत इक़दाम उठाए गए, उसके खिलाफ ना सिर्फ हम सरापा एहतजाज हुए बल्कि हमने उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस बार बात सिर्फ आम शख्स की नहीं है, उसके लिए भी हम हमेशा जंग लड़ते रहे। अब बात हमारे गिरबान तक, हमारे घरों तक आन पहुंची है और इंशाअल्लाह तारीख रकम करेंगे हम। और हम ये बता के माजी में भी दिखाते रहे, अब भी दिखाएंगे कि कानून की हुक्मरानी होगी, कानून का राज होगा। कहीं भी मावराए अदालत किसी भी इकदाम की ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, हम सरापा एहतजाज होंगे। ऐसे इकदाम खत्म करने पड़ेंगे। इसी हवाले जी शुक्रिया महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। एडवोकेट ज़ीशान ढूंढी की मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाकत का मामला। दुनिया पर बार में वकला सरापा एहतजाज। अदालत के बैरूनी गेट की तालाबंदी कर दी गई। हड़ताल के बायस अदालती कार्रवाइयां मुअत्तल। पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद। तफसीलात जानेंगे याकूब ताहिर से। मैं इस वक्त दुनियापुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। बिहाड़ी वाक़े के खिलाफ यहाँ पर वकला जो है सरापा एहतजाज है। इन्होंने आज अदालतों की तालाबंदी करके बाहर जो है धरना दे दिया। इस वक्त दुनियापुर बार के सदर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद, जानते हैं कि इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से झंग में भी वाक़या हुआ है, तो हम वकला जो है वो सारा पूरे मतलब कि इकट्ठे हैं, मुतहद हैं और ये याद करवाना चाहते हैं कि वकला का इत्तेहाद जो है वो जिंदा है, वकला अभी तक जिंदा है। और ये जो इन्होंने जंगल का कानून बनाया वो किसी तरीके से भी जो है वो रवा नहीं मतलब के है, कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम दोबारा फिर भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। दुनियापुर की जो बार है वो बिल्कुल मुतहद है, अपने जो मतलब कि शहीद वकला हैं उनके खून को रायगा नहीं होने देंगे। अपने वकील भाइयों के साथ खड़े हैं और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। और जब तक इन जो जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उनको कैफे के दांत तक नहीं पहुंचाया जाता, उनको फांसियां नहीं दी जाती, उस वक्त तक हम सरापा एहतजाज हैं और इंशाअल्लाह।
जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जामपुर के वकला ने बिहाड़ी और झंग में कत्ल होने वाले वकला से इजहार यकजहती करते हुए पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर हड़ताल की। मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। हाँ जी, पंजाब भर की तरह पंजाब बार की कॉल पर जो है जामपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी वकला ने जो है हड़ताल की। इसके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बार रूम में उन्होंने एक जो हंगामी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ साथ अब इस वक्त इंडियस हाईवे पर वकला जो है धरना भी दे रहे हैं। इस धरने की वजह क्या है, मजीद हम इसमें बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जामपुर के सदर बार जनाब खुरम रजा के। भाई बुनियादी वजह क्या है, क्यों एहतजाज किया रहा है और क्या आपका मुद्दा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की आमदा हिदायत के मुताबिक बिहाड़ी बार के मेंबर जीशान ढूडी पुलिस के हाथों कत्ल हुए हैं, उसके खिलाफ, और झंग के साबिक सदर बार मार्शियल मुनीर साहब के कत्ल, बेईमाना कत्ल पे ये एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनके मुल्ज़मान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और जो FIR है उसमें लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दफात शामिल नहीं की गई और दहशतगर्दी की दफात को भी शामिल नहीं किया गया। इसीलिए पूरे पंजाब में पंजाब बार काउंसिल की हिदायत के मुताबिक एहतजाज वकला साहबान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी तरह